Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we completed our first chapter. In that we studied about the Central Asian context and the age of Shanks. That is the Satavahana. In that we studied about the Indo-Grid Shakas, Kushanas. Then we studied the economic, society, religion and culture. Then we studied about the Satavahana, their polity and administration, society, economic and culture. Now we'll start with the second chapter. The second chapter is about the early history of South India. अभी अब तक अपन ने अशोका के बारे में पढ़ा, तब वो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के बारे में था. फिर अपन सतवाना इन लोगों के बारे में पता इन लोगों से मैं पढ़ा. वी स्टडीड अबाउट दैट आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब जगह पे मोस्टली ये थे. अब सेकेंड चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द साउथ इंडिया के बारे में, राइट. दैट इज़ द पीरियड ऑफ संगम लिटरेचर. इन दैट वी स्टडी द सोसाइटी एंड कल्चर, अर्ली पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टाउन्स, ट्रेड्स एंड क्राफ्ट. Introduction. The earliest mention that we find about the people and kingdoms of South India are preserved in three forms: Ashokan inscription, Sangam literature and Megasthenes account. The earliest mention, अभी सबसे earliest mention अभी साउथ इंडियन किंगडम के बारे में, पीपल के बारे में कहाँ से पता चला? ये तीन फॉर्म में पता चला. दैट इट इज़ एंड बिन प्रिजर्व्ड इन थ्री फॉर्म्स. दैट इज़ द Ashokan inscription, Sangam literature and Megasthenes account. Now we'll start with the first point, that is the period of Sangam literature. Sangam age is the period from the 1st century AD to the 1st century AD in the south, when the literacy works of various literature were approved by the societies or the academics. द संगम एज क्या है? इज़ द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी. सबसे पहले क्या आया? संगम एज आया, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी एडी टिल द फोर्थ सेंचुरी एडी इन द साउथ, राइट. टू द फोर्थ सेंचुरी एडी इन द साउथ, जब लिटरेसी वर्क ऑफ वेरियस लिटरेचर वॉज अप्रूव्ड बाय द सोसाइटीज और द आर्चिमेडिस. कब हुआ ये सब? जब जो लिटरेसी वर्क था अबाउट वेरियस लिटरेचर एंड ऑल, it was approved by the societies or the academies. Tamil is the language of the literature. See, Tamil क्या है? Tamil is the language of the literature. It may be mentioned that Tamil is the oldest among the spoken and literacy languages of South India, and the earliest literature of this language is known as Sangam literature. It may be mentioned that Tamil is the तमिल क्या थी उस वक्त? इट इज़ द ओल्डेस्ट अमंग द स्पोकन, एंड तमिल क्या है? ये सबसे पुरानी लैंग्वेज थी उस वक्त, और बहुत से लोगों को तमिल में ही बात करते थे, एंड इट वाज द लिटरेसी लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया. इट वाज द लैंग्वेज ऑफ द साउथ इंडिया, एंड द अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ दिस लैंग्वेज इज नोन एज संगम लिटरेचर. और जो सबसे पहले लिटरेचर है उस वक्त का, दैट इज नोन एज द संगम लिटरेचर. फ्रॉम अशोकन इंस्क्रिप्शन, Megasthenes account and Sangam literature, it is clear that there have been a lot of cultural interaction between southern and northern India. अभी अशोकन इंस्क्रिप्शन, Megasthenes account और संगम लिटरेचर, इन सब से एक चीज़ बहुत क्लियर होती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चरल इंट्रैक्शन था बिटवीन सदर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया. सदर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया में क्या था? कल्चरल इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था. लाइक कल्चरली वो लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से बाउंडेड थे. द संगम लिटरेचर बिलीव्स दैट द डायनेस्टी ऑफ चेरास, चोलास एंड पांड्यास बिलोंग टू इमेमोरेबल एंटिक्विटी. सी, द संगम लिटरेचर बिलीव्स दैट द संगम लिटरेचर क्या बोलता है? It believes that the dynasty of the Chera, Cholas and Pandyas, they belong to immemorable antiquity. They all belong to the immemorable antiquity. They all belong to that level. Then moving towards the next.
society and culture. Sangam literature scholars flourished in the Pandya kingdom where three Sangams, college of Tamil poet, were held. See, संगम लिटरेचर स्कॉलर क्या है, फ्लरिश्ड इन द पांड्यास किंगडम. हाँ, संगम लिटरेचर कहाँ अच्छे से फ्लरिश हुआ, इट फ्लरिश्ड इन द पांड्यास किंगडम, जहाँ पे 3 संगम थे. ऑफ दोज द लिटरेचर ऑफ 2 आर लॉस्ट, जिसके 2 लिटरेचर लॉस्ट हो गए. सिर्फ एक लिटरेचर के बारे में अपने को पता है, बाकी जो थे 2 थे, दे आर लॉस्ट. द थर्ड संगम comprised only epic and antilogues. 3. The third Sangam comprised only epic and antilogues. There are from the Tamil classic. See, वो सारे किसके थे? These are from the Tamil classic. From the first Sangam, nothing has been saved. See, from the पहला संगम था, उसके अंदर से अपने को कुछ भी नहीं मिला, सब डिस्ट्रॉय हो गया है या कुछ कैसा घूम गया है. From second Sangam, just a single work, Tolapiyam, has come down to us. See, फर्स्ट संगम लिटरेचर से अपने को कुछ भी नहीं मिला, राइट. सेकेंड से क्या नहीं मिला, सेकेंड से अपने को सेकेंड संगम से अपने को सिर्फ एक काम मिला, दैट इज द Tolapiyam has come down to us. It is a grammatical treasure written in pattern of sutras, though it also throws tremendous light on the culture, belief, custom, manner and thoughts of the people. See, it is a grammatical treatise written in the pattern of sutras. तो ये जो अपने को एक सिंगल वर्क मिला सेकेंड अलग संगम में से, उसके अंदर से अपने को क्या पता चल रहा है, ये एक ग्रामेटिकल ट्रीटिस है, रिटन इन अ पैटर्न ऑफ सूत्र के फॉर्म में लिखा रहता है, और इसमें अपने को कल्चर, बिलीफ, कस्टम, मैनर एंड थॉट्स ऑफ पीपल के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. द अदर तमिल क्लासिक ऑफ द एज नोन टू अस बिलोंग टू द थर्ड संगम. सी, अभी जो अपने को तमिल क्लासिक एज के बारे में पता चल रहा है, दिस ऑल बिलोंग टू द थर्ड संगम. These are epics and antilogues and are grouped in systematic antilogues. See, ये सारे epics हैं and antilogues हैं, and they are grouped in systematic antilogues. नरिनाई, कुरुतोगाई, अनिगुरुनु, पंडितरुपातु, परिपादल, कालिकोटागाई, अगनानरू, पुरन्नानुरा एंड पट्टू पट्टू. अभी उस वक्त के थर्ड संगम से जो एपिक्स थे उसके ग्रुप्स उन्होंने बोले हैं इन अ सिस्टमैटिक एंटोलॉजिस. दे आर नरिनाई, कुरुंतोगोई, अनिगुरुनुगुनु, पाडिरुपुट्टू, परिपादल, कालिकोट्टगई, अन्नानगुरु, पुरनानारू, पट्टू. The whole collection includes 2,279 poems of various lengths from 3 to 800 by 473 poets. अभी होल कलेक्शन आप देखोगे तो कितने पोएम्स दिखेंगे आपको, 2,279 पोएम दिखेंगे जो अलग अलग वेरियस लेंथ्स के हैं, और 3 to 800 बाय 479 पोएम्स ही 300 से लेके 300 टू लेके 800 तक पोएम्स लिखे हुए. टोटल कितने पोएट्स है उसमें, 473 पोएट्स है. देयर आर नोट्स गिविंग द नेम ऑफ इट्स ऑथर, द ओकेशन ऑन द कंपोजिशन एंड अदर डिटेल्स एट द एंड ऑफ ईच पोएम. जैसे ही पोएम ख़त्म होती है, ऑथर का नाम दिया है, क्यों लिखा है, और फिर डिटेल्स, ये सारे आपको पोएम ख़त्म होते ही मिलेंगे. ओनली अ पोर्शन ऑफ द वास्ट लिटरेचर हैज सर्वाइव्ड. पूरा तो अपने पास है नहीं, बट थोड़ा बहुत पोर्शन अपने पास आज भी वो लिटरेचर का है. मैनी इंस्क्रिप्शंस रेफरिंग टू छोल्यास, पांड्यास एंड चेरास मेंशन अबाउट द संगम लिटरेचर. सी, अब यहाँ पे क्या बोला है, बहुत से इंस्क्रिप्शंस मिले हैं छोलास, पांड्यास एंड चेरास के बारे में अपने को, बहुत से अपने को मिले हैं. The three kingdoms offered patronage to poets and other authors from time to time. See, the three kingdoms offered patronage to poem.
See, the three kingdoms offered patronage to poems and other authors from time to time. The Sangam literature reflects the maternity of the Tamil language and started serving and the see the Sangam literature, the three kingdoms offered patronage to poets and other authorities from time to time. The Sangam literature reflects the maturity of the Tamil language and started serving as a powerful, elegant medium of the literacy expression about the society and culture. The संगम लिटरेचर के बारे में क्या आपने को तमिल लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं एंड इट वाज द वन ऑफ द पावरफुल एलिगेंट मीडियम ऑफ लिटरेसी एक्सप्रेशन अबाउट द सोसाइटी एंड कल्चर. संगम लिटरेचर प्रेजेंट्स अ ट्रू पिक्चर. सी, संगम लिटरेचर क्या है, ये अपने को सही पिक्चर बताता है तमिल के बारे में. द लिटरेसी पिक्चर्स ब्रिंग फॉरवर्ड द कंपोजिट कैरेक्टर एंड द रिजल्ट ऑफ ब्लेंड ऑफ टू कल्चर्स, द्रविडियंस एंड आर्यंस. द लिटरेसी पीस क्या है, ब्रिंग्स फॉरवर्ड द कंपोजिट इट कम्स ये जो लिटरेसी का जो वर्क है उसके बारे में अपने को कंपोजिट कैरेक्टर के बारे में पता चलता है. दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ ब्लेंड ऑफ टू कल्चर. दो कल्चर के बारे में पता चलता है. दो कल्चर कैसे है वो, एक तो द्रविडियंस एंड द सेकेंड इज द आर्यन. इट कैन बी अंडरस्टूड दिस वे दैट द स्टोरीज of Ramayana and Mahabharata were very well known to the people of the south. Mention of Lord Shiva, struggle between Krishna and Asuras, presence of great fire under the ocean and Uttar Kuru, the northern country. See, अभी जो अपने को मिला है कल्चर, जो अपने को उधर सब अपने को स्टोरीज पता चली है, उस पर से एक चीज़ बहुत क्लियर है कि लोगों को उस वक्त रामायण और महाभारत अच्छे से पता था. कैसे, उन लोगों ने दे हैव मेंशन्ड ऑफ गॉड शिवा, देन स्ट्रगल बिटवीन कृष्णा एंड असुरास, और फिर फायर अंडर द ओशन एंड उत्तर कारू, द नॉर्थर्न कंट्री. द संगम लिटरेचर ऑल्सो मेंशन्स अबाउट द ट्रांसलेशन इन महाभारत इन तमिल बाय परुण देवनार विच इज़ नोन एज भरतम. से संगम लिटरेचर से अपने को ये भी पता चला लोगों ने महाभारत को भी ट्रांसलेट किया था तमिल में. किसने किया था, दैट वॉज द पेरू देवेनार which is known as Bharatam. During the Sangam age, the king patronized poet and supported the development of various arts like music and dance. See, during the Sangam age क्या है, king ने क्या लिखा, king patronized poem. king ने बहुत poems वगैरह लिखे और बहुत सारे arts भी develop किए like music and dance. Various kinds of musical instruments were described like the drums and the flutes. See, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले उस वक्त, दैट इज़ द फ्लूट एंड ड्रम्स. द कोर्ट ऑफ द किंग वेर एनलिव्ड बाय द बैंड्स ऑफ द म्यूजिशियन फॉलोड बाय द वुमेन हु डांस टू द अकम्पलिशमेंट ऑफ द म्यूजिक. मिक्स डांस इन विच मैन एंड वुमेन डांस टुगेदर आर ऑल्सो मैंशन. सी, किंग के दरबार में क्या रहता था, हमेशा म्यूजिशियंस रहते थे, राइट. तो अपने को बैंड्स वगैरह मिले, बैंड्स ऑफ म्यूजिशियन वगैरह मिले जिसके अंदर मैन एंड वुमेन था. वुमेन यूज टू डांस, लाइक म्यूज़िक के ऊपर वुमेन डांस करती थी. और ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेन डांस करती थी, मैन एंड वुमेन दोनों डांस करते थे. आई थिंक आपने ये मूवीज़ में वगैरह देखा ही होगा किस तरह से मैन एंड वुमेन दरबार में डांस वगैरह करते हैं एंड ऑल. द पोएम्स मेंशन टू द पॉपुलर बिलीफ्स एंड कस्टम. पोएम में क्या है, दे हैव रिटन अबाउट द बिलीफ्स एंड कस्टम. द पीपल बिलीव्ड इन ओमेन एंड एस्ट्रोलॉजी. सी, उस वक्त लोग क्या करते थे, दे पीपल यूज टू बिलीव इन ओमेन्स एंड एस्ट्रोलॉजी. देयर वेर फॉर्चून टेलर्स. द राइट्स वर प्रैक्टिस्ड विच वर सपोर्टेड टू अवर्ट द मिस्chiefs ऑफ डेमॉन्स. सी, देयर वेर फॉर्चून टेलर. They were fortune teller, the rites which were practiced to support the demons and all. The eclipse were the result of snakes eating up the sun and moon. See, जो इक्लिप्स वगैरह मिलते थे वो उसके ऊपर क्या बोलते थे कि बाबा snake eating up the sun and moon. Crows were believed to announce the arrival of the guest. See, crows were believed about the arrival of the guest.
आज भी अपन बोलते हैं ना, अगर अपने घर के कंपाउंड में क्रो काव 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 करते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे बाबा कोई तो मेहमान आने वाला है अपने घर पे, आज भी बोलते हैं। लाइक मैं तो बहुत बार सुनती हुई है, स्पेशली मेरे पापा के घर पे। The Vedic religion had made its place in South India is clear from the reference to costly sacrifice made by the monarch. See, the Vedic religion क्या है उसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था साउथ इंडिया में। ये अपने को कैसे पता चलता है, जो सैक्रिफाइसेस वगैरह होते थे उस पर से अपने को पता चलता है। द रिलीजियस ड्यूटीज वेर हेल्ड हाई इन द सोसाइटी। सी, रिलीजियस ड्यूटीज क्या चलते थे, दे वेर हाई इन द सोसाइटी। Hinduism was the prominent sect of the age and the worship of Subramanya was very prominent. See, Hinduism was क्या था, was the prominent sect of the age. एक prominent था उस वक्त, और it was worshipped by Subramanya was very prominent. जो worship करता था उसको अपन बोलते हैं सुब्रमण्य, और ये बहुत important था. The other members of the pantheons are Shiv, Vishnu, Krishna, Balaram, Anastashai and Ardhana Rivashvara. See, the other members of the pantheons are, see, other members कौन थे, Shiva, Vishnu, Krishna, Balaram, Anastashai and Ardhana Rishtavar. The impact of northern ideas over religion and philosophy are marked. See, the impact of northern ideas, ये जो impact of northern ideas over religion and philosophy ये सारे marked हैं. Dance and music were interconnected with religious since every time. See, dance and music क्या थे, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से connected थे since पहले से, early time से. The status of women in Sangam society was not equal to that of men either in theory nor in practical. अपन बोलते हैं ना पहले सतवाना में क्या है, मेन एंड वुमेन को ऑलमोस्ट इक्वल स्टेटस था. वुमेन यूज टू गेट एडुकेटेड एंड ऑल, और किधर किंग के नाम के आगे तो माँ के नाम के आगे पुत्र लगाते थे और वही किंग का नाम बोलते थे, राइट. वी सॉ दैट इन द सतवाना पीरियड. बट यहाँ पे संगम सोसाइटी में ऐसा नहीं है. मेन को इम्पोर्टेंस दिया जाता था एंड वुमेन हैड नो स्टेटस. देयर वर मैरिड वुमेन who had settled down as duty-wise housewives. There were married women who had settled down as housewives. It is this women who either committed sati or led a very hard life as widow after the death of their husband. See, ये women थे, बहुत से women क्या थे, वो सती का शिकार हो गए थे, या कुछ widows या फिर कुछ widows बन के जीते थे, but उनका life was बहुत miserable. There were female aspects of Buddhism or Jain Sagrans like Kundi, Andigal and Manikekalai. See, there were female aspects of Buddhism. See, Buddhism females भी follow करती थी, और Jain Sanghams like Kundi, Angai and Manimekalai. There were also a large number of courtier sons. See, और large number of courtier sons भी थे. Though women acted as a bodyguard, they were not recruited as soldiers, मिनिस्टर और अदर एडवाइजरी ऑफ द किंग. वुमेन को बॉडीगार्ड वगैरह ऐसे बोलते थे, बट उनको ऐसे सोल्जर, मिनिस्टर या एडवाइज़र बोल के नहीं आते थे किंग के दरबार में. वुमेन डिड नॉट वो प्रॉपर्टी. सी, वुमेन डिड नॉट वो एनी ऑफ द प्रॉपर्टी. वुमेन का खुद का कुछ प्रॉपर्टी नहीं रहता था, बट उनको बॉडीगार्ड वगैरह बोलते थे, बट उनकी खुद की प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं रहती थी. We'll wind up our lecture here. In next lecture, we'll be studying the early polities. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.